Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज कारोबारी खबरों के साथ साथ आपके प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। फिर अर्थव्यवस्था हो या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल, आप सीधा हमें फोन कर सकते हैं इन अंकों पर। ये अंक हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता दूरभाष अंकों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 डायल करना न भूलें। लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक अमन अग्रवाल। अमन, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। निश्चित चर्चा शुरू करेंगे, मगर उससे पहले हेडलाइंस। The headlines: benchmark domestic indices end with marginal gains. Sensex adds 40 points. Nifty settles above 25,750. Major Asian stock markets close in the positive territory, and global crude oil prices fall. देश के प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 40 अंक बढ़ा, निफ्टी 25,750 के ऊपर बंद हुआ। प्रमुख एशियाई शेयर बाजार आज सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decisions. रुक करते हैं आज की पहली खबर की तरफ। देश के प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ खुले, लेकिन उतार चढ़ाव बड़े कारोबारी सत्र के बाद मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 83,978 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 41 अंक बढ़कर 25,763 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक मुनाफे के साथ बंद हुआ। मिड कैप सूचकांक में लगभग 0.6% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.7% से अधिक की गिरावट आई। The benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, opened lower today, but after a volatile trading session, ended marginally higher. The Sensex added 40 points to close at 83,978, while the Nifty advanced 41 points to settle at 25,763. In the broader market indices at the Bombay Stock Exchange, closed in the positive zone. The mid-cap index increased over 0.6% and the small-cap index climbed 0.7%. सेंसेक्स में शामिल 30 में से 15 कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई। सबसे अधिक लाभ में रहने वाले शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स दोनों में 1.7% की वृद्धि हुई। इटर्नल में लगभग 1.5% की वृद्धि हुई और एसबीआई में 1.4% की वृद्धि हुई। सबसे अधिक पिछड़ने वाली कंपनियों में मारुति लगभग 3.4%, आईटीसी में 1.5% और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में लगभग 1.4% की गिरावट आई। And among the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 14 out of 21 sectors ended with gains. In the top gainers, telecommunication rose 2.9%, realty climbed almost 2.3%, and healthcare increased over 1.1%. Among the top laggards, utilities as well as consumer durables both fell over 0.2%. Focused IT and IT each dipped over 0.1% and FMCG slipped marginally. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,227 companies
advanced and the shares of 2009 companies declined, while shares of 225 companies remained unchanged. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 1 पैसे कमजोर होकर 88.78 प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 99.87 पर चल रहा था। And we are joined in by our first caller from Delhi, Amit. Amit, welcome. नमस्कार सर, मैं अमित झा बात कर रहा हूँ दिल्ली से। नमस्कार। सर, मेरा प्रश्न ये है अमन सर से कि जैसे कि मान लीजिए सर कि इस साल अभी तक टिल आज डेट तक गोल्ड के प्राइस में 56% की वृद्धि हुई है, ठीक है सर। तो उसके हिसाब से गोल्ड में डील करने वाली कंपनियों का कुछ खास प्रदर्शन नहीं देख रहा हूँ सर। और मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था सर कि जैसे डॉलर के मुकाबले जब रुपया सस्ता होता है, फिर क्रूड के ऊपर या क्रूड इंपोर्ट बिल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? धन्यवाद सर। देखिए, जहाँ तक जो गोल्ड कंपनियां जो गोल्ड में डील कर रही होती हैं, उनकी बढ़ोतरी होगी जब गोल्ड ज़्यादा बिकेगा, जब लोग ज़्यादा खरीदेंगे। प्राइस राइज से या दाम बढ़ने से उनकी बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। टर्नओवर का गेम होता है ये, जो कंपनियों के लिए होता है, और क्योंकि रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो टर्नओवर बहुत कम हो गया है और काफ़ी लोग अब इतना ज़्यादा नहीं खरीद रहे हैं। दूसरा, ये टेम्पररी है, इतना ज़्यादा रेट सस्टेनेबल नहीं है और आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। दिसंबर क्लोजिंग तक रेट गिरने की उम्मीद है सोने के मामले में। जहाँ तक दूसरी इन्होंने बात की थी वो थी कि रुपया जब मजबूत होता है, कहता है तो उसका क्रूड पे क्या है? क्रूड का जी ऐसा है, एक तो पहली बात होता है कि क्रूड के दाम, जैसे आज भी क्रूड के दाम गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, गिरे हैं इनफैक्ट। पर ये समझना जरूरी है कि कोई भी देश जो होता है वो क्रूड जो है मार्केट में हर रोज जाके नहीं खरीदता। जैसे हम दूध या बिस्किट खरीदते हैं, वो खरीदे जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और कुछ सालों के कॉन्ट्रैक्ट पहले 20-20, 25-25 साल के होते थे, आजकल 2 से 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें रेट फिक्स किया जाता है। जैसे हिंदुस्तान में करीबन 55 से 65% रुपए डॉलर पर बैरल के ऊपर रेट ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स में फिक्स हुआ है। तो अगर गिरता भी है तो सिर्फ थोड़ा जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से खरीदते हैं। जब रुपया गिरता है तो वही दाम हमारे को महंगा पड़ता है, और जब रुपया बढ़ता है, स्ट्रेंथन होता है, स्ट्रांग होता है, तो वही दाम हमें कम पड़ता है, बिकॉज हमारा खर्चा, खरीदारी सब कुछ रुपए के अंदर है, डॉलर में नहीं है। तो इसलिए जब डॉलर के अंदर जब ऐसा होता है तो हमें महंगाई भुगतनी पड़ती है हिंदुस्तान को, टैक्स ट्रेजर को, इसलिए वो महंगा पड़ता है। और ये समझना जरूरी है, जो आज तेल खरीदा जाएगा वो आपकी टंकी के अंदर 2 से 2.5 महीने के अंदर पहुंचेगा, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग होगी, पहले वो पोर्ट डिलीवर होगा, फिर उसके प्रोसेसिंग होगी, फिर वो एक ऐसे तेल में बंधेगा जो आपकी गाड़ी उसको कंज्यूम कर सकती है। इसलिए जो भी तेल आज आपकी गाड़ी में डल रहा है वो 1.5-2-3 महीने पहले हिंदुस्तान में इंपोर्ट हो चुका है, उसे खरीदा जा चुका है। जी, मध्य प्रदेश से हमारे अगले कॉलर जुड़ रहे हैं, राजेश यादव। राजेश जी, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी, शुभ संध्या। हेलो सर जी। हाँ जी। ये मैं IPF में मेरे शेयर पड़े हुए हैं, मैं पिछले 2 साल से उनके साथ ये कर रहा हूँ, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। और ये अभी नया कुछ स्कीम निकली है जिसके लिए सेटलमेंट हो रहा है करके सुनने में आ रहा है, लेकिन वो अभी तक कुछ ये नहीं होता है। कुछ आपके पास उसका ईमेल आईडी या फोन नंबर कुछ मिल सकता है? या तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर के पास थे, आप ये क्यों नहीं करवाते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में पूरा क्लियरिटी देना चाहिए? देखिए जी, वित्त मंत्री जो होते हैं उनका काम भारत सरकार को, भारत को आगे बढ़ने की तरफ और देखने की तरफ होता है, और भारतीय ग्रोथ को देखना होता है। जो हर एक महकमे का डिपार्टमेंट होता है, वो हर एक डिपार्टमेंट हर एक अपनी चीज़ों को देखता है। तो या तो आप उनके ऑफिस में अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो फिजिकली जाके आसपास जाके बात करें, या टेलीफोन पे बात करें, या हेल्पलाइन नंबर पे बात करें, तो आपको जरूर रिस्पांस मिलेगा, अगर ईमेल का रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो। Next caller is Yogesh Sharma from Delhi. Yogesh, welcome. जी, आप सभी को नमस्कार। मेरे 2 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि एक तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पहले मार्केट मंत्रा की टीम को, जो इतने साल दर साल ये प्रोग्राम करते हैं और हम बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि AI के आने के बाद से, और जिस तरीके से AI हर जगह पे डिस्ट्रप्शन ला रहा है, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो राइटिंग हो, तो मैंने सुना है निवेश में भी उसका इस्तेमाल हो रहा है, कई फंड मैनेजर भी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या AI के भरोसे पर स्टॉक पिकिंग करना या ट्रेडिंग करना कितना
लाभदायक या यूं कहूं कि नुकसानदायक हो सकता है? दूसरा मेरा सवाल है कि ईपीएफ को क्या हम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एनपीएस है, तो क्या ये एक चॉइस नहीं देना चाहिए लोगों को कि ईपीएफ से बाहर हो जाए अगर ईपीएफ की जरूरत ही नहीं है तो किसी को? देखिए जी, आपने अच्छी बात करी कि पहली बात जो एआई है वो जरूर एक चुनौती दे रहा है लोगों को। अपने जॉब्स की भी खतरे हो रहे हैं काफ़ी जगह। काफ़ी आईटी कंपनीज ने जॉब रिडक्शन भी की है क्योंकि उन्हें एआई इम्प्लीमेंट किया है। पर यह कहना कि अभी ये भी क्लियर नहीं है कि एआई के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कैसी हो सकती है। इनफैक्ट वॉरफेयर्स में एआई बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो गया था, आज से 10-12 साल पहले ही एआई बेस्ड सिस्टम्स आ गए थे, पर अभी भी वॉर सिस्टम्स एआई पे नहीं चल पाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो सुदृढ़ता है, जबकि एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है, पर सुदृढ़ता अभी भी उसमें नहीं है। तो आप अपना डिसीजन किस चीज़ पे बेस करना चाहते हैं ये आपको देखना होगा। मेरे को याद आता है एक जिन्होंने कहा कि जो मेरे को मार्केट में जो टेलीविजन रिपोर्टर्स बताते हैं मैं उससे बिल्कुल अपोजिट करता हूँ और मेरे को मार्केट से पैसा बन जाता है। तो हर एक का अपना एक वैल्यू जजमेंट होता है। आप अपना वैल्यू जजमेंट बनाइए, अगर आपको एआई पे करना है या किसी और मीडियम से करना है उसके ऊपर लेके चले। अमन, हमारे साथ दिल्ली से ही नितिन जुड़ रहे हैं। नितिन जी, अपना सवाल पूछिए। Nitin, can you hear us? Okay, it seems we have lost touch with Nitin. We'll get back to him whenever he calls back. In the meanwhile, let's move on to the next story. जी, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एशिया के प्रमुख बाजार आज सकारात्मक रूप के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 2.8%, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.5% से ज्यादा और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 0.3% से अधिक बढ़ा। जापान का बाजार आज बंद रहा। प्रमुख यूरोपीय सूचकांक आज मुनाफे के साथ कारोबार करते नजर आए। जर्मनी का डैक्स 1.1% से अधिक, फ्रांस का कैक 0.2% से अधिक और लंदन का फुटसी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% की बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया। और दिल्ली से नितिन हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं। अमन जी, नितिन जी अपना सवाल पूछिए प्लीज। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है, जैसे गोल्ड पीले कलर का होता है और हमारे पास गोल्ड व्हाइट कलर का भी है और पिंक कलर का भी सुना है हमने। तो अभी एक्सपर्ट से पूछा था सैटरडे को, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई गोल्ड नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए, श्रोता की जानकारी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा व्हाइट भी गोल्ड होता है गोल्ड असली तो पीला ही होता है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर ये म्यूचुअल फंड में जैसे फंड मैनेजर होता है, ऐसे शेयर मार्केट के आपके इसमें भी कोई फंड मैनेजर होता है कि जिससे शेयर मार्केट में जो वही हमारा पैसा इधर उधर करते हैं? बिल्कुल, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। पहली बात ये समझना जरूरी है कि फंड मैनेजर कोई भी हो सकता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो चाहे वो प्राइवेट इक्विटी फंड में हो। अब आपकी क्षमता के ऊपर है आप कितना पैसा निवेश करना चाहते हैं। जो छोटे निवेशकर होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी फीस इसलिए वो रखते नहीं हैं। अदरवाइज वेल्थ मैनेजर्स भी कहते हैं इनको, फंड मैनेजर्स भी कहते हैं, प्राइवेट इक्विटी मैनेजर्स भी कहते हैं। आप उनको हायर करके निवेश कर सकते हैं। जहाँ तक सोने की बात है, मैं सक्षम नहीं हूँ इस प्रश्न को आंसर करने के लिए, पर हमने जब तक बचपन से देखा है तो गोल्ड कलर का ही होता है, पर बाकी कलर की भी जो है सोने की धातुएं मिलती हैं। Right, and on to the next story. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that steady growth in bilateral trade and investment has been witnessed between India and Bahrain in the recent years. In his opening remarks at the 5th India-Bahrain High Joint Commission meeting in New Delhi, Dr. Jaishankar said both countries have witnessed significant progress in bilateral investment in areas of defense, security, trade, commerce, health, culture, and people-to-people ties. We have also seen a steady growth of bilateral trade and investment between our countries. We welcome investors from Bahrain to come and explore investment opportunities in India. Conclusion of a bilateral investment treaty and the establishment of a joint working group on trade and investment will further boost our economic ties. And the GST Bachat Utsav started on the 22nd of September this year with the reduction of GST on many items benefiting citizens across the country. Our correspondent brings a report on how the next generation GST reforms are boosting the economy of Telangana. We have a report.
The next generation GST reforms have strengthened the growth momentum of Telangana. In the pharma sector, the GST on over 30 cancer drugs has been reduced to nil and taxes on all drugs and medicines for personal use has been lowered to 5%. The move has made healthcare more affordable and accessible in the state. The aerospace and defense manufacturing industry is witnessing increased demand for drones across agriculture, mining and infrastructure sectors. Under the recent rationalization, the tax on unmanned aircrafts, tanks and other armored fighting vehicles has been brought down to 5%. In the toys and handicraft sector, tax rate on GI tag products like Nirmal Toys and Craft, Pemberti Metal Craft, Adilabad Dokra and Warangal Dairies has been slashed to 5%. The rate rationalization has reduced cost while promoting exports and supporting research and development in various sectors. With this, traditional crafts and toys have witnessed higher sales, increased artisan incomes and stronger domestic and international demand. With Rishu, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi. You are tuned into Market Mantra and you can call us on our telephone numbers 23314444, 23421050 and 23310464, but do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. Well, Aman, we just heard the story of GST, how it's creating ripples across sectors. Now, just a couple of days back, a report of the GST uptick in collections for the month of September has just come in, and we have seen an encouraging kind of increment in it. There were all-round apprehensions in it that it could dip with the slash of, or maybe we can call it, the rationalization of GST. Now, how do you see this uptick? Is this very new kind of a thing that we are witnessing at the moment? No, I think the GST rates, the GST collections have been actually going up, and the prudence has been going forth in terms of people filing the returns in time and paying their dues. And that has been going on at a very nice rate. This particular cut, this Bachao Utsav which has happened, post 22nd, has actually facilitated the consumption spending increase by people. So people have more money to spend. And in any case, we are in festive periods. These are times when festivities of almost all religions, marriages of all religions happen between the months of September till almost February. So these are months where people end up spending, have budgets and spend. So given the fact that there are more funds available with them because of GST cut, in the reliefs or relaxation which has happened, the bouncy is being observed. So we are not expected to, as I have said before also, we are not expected to make losses, but I think the government will benefit in due course. And as I told earlier with the gold industry also, it's always seen it's a question of volumes. It's not a question of what maximum rate you want to charge. अमन, मुंबई से हमारे साथ किशोर जुड़ रहे हैं. किशोर, अपना सवाल पूछिए प्लीज. हेलो. हाँ जी किशोर जी. हाँ सर, नमस्ते सर. नमस्कार सर. मेरा एक सवाल ये था हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड. हाँ जी. जब हम पॉलिसी रिन्यूअल पे आते हैं और कोई ये हेल्थ इंश्योरेंस की लायबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, सपोज एग्जांपल 3 लाख से 5 लाख करना है या 10 लाख करना है, बिल्कुल. बट अभी इतना सर जीएसटी में बेनिफिट मिल रहा है, देन जो भी ये है गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी ला रहा है, बट ड्यूरिंग द हमने कोई क्लेम सबमिट नहीं किया लास्ट 4 या 5 ईयर में, और रिसेंटली क्लेम सबमिट करने के बाद हम ईएमआई इंक्रीज करना चाहता है तो वो द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी अलाउड नहीं करती है सर, और यही बेनिफिट अदर प्राइवेट कंपनी में मिलता है. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फ्रॉम यू? पहली बात यह है कि इंश्योरेंस जो होता है हर बार 1 साल के लिए आप लेते हैं. अगर आप 2 साल का प्रीमियम देते हैं 2 साल पर, हर 1 साल इंडिपेंडेंट होता है. तो अगर आपने एक कंपनी से लिया और आपको लगता है कि वो नहीं कर रही है तो आप दूसरी कंपनी पे मूव कर सकते हैं. दूसरी बात, जो जीएसटी की रिलीफ मिली है, जो आप प्रीमियम देते हैं उस पर जीएसटी लगता था, अब इंश्योरेंस कंपनीज के प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगा करेगा, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी 0% होगा. तीसरी बात, जब आप इंक्रीज करते हैं, चाहे 3 से 5 करें, 5 से 10 करें या 3 से 10 करें, तो उसमें एक होल्डिंग पीरियड होता है कुछ क्रिटिकल डिजीजेज और चीजों के लिए, जिसमें 30 दिन और 60 दिन का पीरियड अलग अलग कंपनीज निर्धारित करती हैं. अगर वो पीरियड निकल जाता है तो उसके बाद 100%, जो सपोज आप 3 लाख से 10 लाख पे गए तो पूरा 10 लाख आपकी वैल्यू रहती है, पर उन 30 दिनों या 60 दिनों के लिए वो 3 लाख की लिमिट रहती है उन क्रिटिकल या स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए या कोई हो.
अदरवाइज आपकी लिमिट 10 लाख इंक्रीज हो जाती है। ये आपके ऊपर है कितना आप प्रीमियम देके अपनी उसका अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं। In fact, Aman, I would like to make one more point clear here. If you increase your premium, the insurance coverage, let's say from 3 to 5 lakhs or 5 to 10 lakhs, there would be a period, as you just mentioned, yes, and there is a period for pre-existing disease as well, correct, which is probably 24 months or 36 months. Correct. So for the sum that you are increasing, let's say from 5 to 10 lakhs, that's the increment of 5 lakh rupees. For that sum, you will again have to wait for 24 months or 36 months. ठीक कह रहे हैं। इसमें एक थोड़ा राइडर ये है कि अगर आपने पिछले 2 सालों में या 3 सालों में क्लेम नहीं किया, yes, और आपने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर रखा था कि मेरे को ब्लड प्रेशर है या शुगर है, yes, या कोई ऐसी डिजीज है जो चल रही है, तो फिर ये जो पीरियड होता है ये आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। पर अगर आपने पहले क्लेम किया हुआ है तो उसमें भी आपने इंटीमेशन कर रखा है तो ये पीरियड बाइंडिंग खत्म हो जाती है। पर अगर आपने सबको इंटीमेट नहीं किया तो ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का टाइम पीरियड बाइंडिंग होता है। और जैसे अभी कहा मैंने, और क्यों के लिए क्रिटिकल के लिए इन डिजीज पे भी जो प्री एग्जिस्टिंग होती है उन पे बाइंडिंग होता है, बाकी पीरियड आपको सारा मिल जाता है। भोपाल से शंकर जुड़ रहे हैं। शंकर जी अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम। सर मेरा सवाल, हाँ जी नमस्कार। मेरा सवाल सर पेट्रोल के ऊपर है। पेट्रोल प्राइसेस व्हाई दे आर नॉट वन नेशन वन टैक्स वन अक्रॉस द कंट्री। अब बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है और सेंटर में भी है और दिल्ली में भी है। दिल्ली में पेट्रोल का प्राइस 95 है, हमारे यहाँ 110 है। सर व्हाई दिस इनरैशनैलिटी? बिकॉज वी आर नॉट रिचर देन पीपल इन दिल्ली एंड दिल्ली गवर्नमेंट अगर काम चला सकती है तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी चला सकती है। इसके लिए क्या वजह है कि व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट? आपने ठीक कहा। देखिए पहले जो टैक्सेशन सिस्टम था वो वैट टैक्सेशन सिस्टम था, उसको जीएसटी में कन्वर्ट किया गया। अरुण जेटली साहब ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया, जो वित्त मंत्री थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि वो पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में लाया जाएगा दायरे में। पर क्योंकि ये एक स्टेट टैक्स होता है, उसमें काफी कलेक्शन होती है, तो स्टेट्स इसको फोरगो नहीं करना, छोड़ना नहीं चाहती हैं और इस वजह से वो अभी तक जीएसटी में लागू उसको नहीं ला पाए। अगर ये जीएसटी के अंदर आ जाता है तो जैसे आपने कहा वन नेशन वन टैक्स वैसा ही होगा और रेट फिर एक जैसा हो जाएगा। पर क्योंकि अभी हर एक स्टेट अलग अलग टैक्स लगा रही है, अलग अलग रहती है, ये सिर्फ इसके ऊपर नहीं है, अल्कोहल के ऊपर भी है, कुछ और चीजों के ऊपर भी है जिसमें ये चीजें आती हैं, जहां पे जो है ये आपका जीएसटी अभी लागू नहीं हुआ है और इस वजह से हर एक स्टेट में अंतराल आपको देखने का मिलेगा उन रेट्स के अंदर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत अब प्रौद्योगिकी का सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं बल्कि ये प्रौद्योगिकी परिवर्तन का नेता बन चुका है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में उभरते विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश में नवाचार का आधुनिक तंत्र निर्मित करने के लिए अनुसंधान को सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र बन चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का सेमीकंडक्टर क्षेत्र एक परिवर्तनकारी छलांग लगा चुका है। उन्होंने देश की जैव अर्थव्यवस्था के विकास का भी उल्लेख किया। जैव अर्थव्यवस्था 2014 के 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अब लगभग 140 बिलियन डॉलर हो चुकी है। Aman, talking of this emerging science and technology innovation conclave 2025, which was inaugurated today at Bharat Mandapam in New Delhi, this is really very heartening. And if we look at the progress that the country has made over the past few years, particularly over the past 8 to 10 years, we have seen addition of new IITs, new IIITs, and other technical institutions as well. We have seen our progress in the space mission, be it the Gaganyaan, Mangalyaan, and recently Subhanshu Shukla, Group Captain Subhanshu Shukla, made history by being the first person Indian origin to be there. And now, if we look at the push today that the Prime Minister gave in his opening remarks as well as when we look at his speech, this is really heartening because STEM, as we call it, science, technology, engineering and mathematics, this field, this particular domain has been somewhat kind of not been up to that mark if we look at it more than 10 years ago. And now that this thing has come up, this STEM push,
this will further kind of add to our already thriving and growing economy. Your views on this? No, I agree with you. The number of institutions and universities have gone up. अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ 350 यूनिवर्सिटीज़ थी 2014 के अंदर. आज करीबन 1500 यूनिवर्सिटीज़ हैं हिंदुस्तान में, और उस समय 10-12 हज़ार इंस्टीट्यूशंस होती थी हायर लर्निंग की. इस समय 50-55 हज़ार से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं. और उसके साथ साथ जो निवेश बढ़ा है वो भी इंक्यूबेटर फैसिलिटीज भारत सरकार पुश कर रही है, चाहे वो अटल प्रोग्राम से हो चाहे और प्रोग्राम्स हैं. तो इंक्यूबेशन है, स्टार्टअप मूवमेंट है, स्टैंड अप मूवमेंट्स हैं. ये सारे जो रिफॉर्म प्रोसेसेस हैं ये एक नई ऊर्जा देते हैं व्यापार को. और ये जो नई ऊर्जा व्यापार को आ रही है, हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान की जैसी प्रगति कोविड के बाद देखने को मिली. पूरा विश्व तो डाउन जा रहा है, हिंदुस्तान जो है आगे बढ़ता जा रहा है, तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है. उससे भी एक इकोनॉमिक पुश सारे व्यापार मंडल को मिला है, और उससे नई जो ऊर्जा मिली वो ग्रोथ की तरफ. और इसीलिए हम सिर्फ, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सिर्फ अब हम एक फॉलोअर नहीं है टेक्नोलॉजी के, इस समय प्रोड्यूसर भी बनते जा रहे हैं, लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं. तो एक ही चीज जो निकल के उभर के आ रही है हिंदुस्तान की छवि के अंदर, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से निकल के आ रही है. Yes, he gave a big push in his speech as well for the research and development, and over 1 lakh crore rupees has been kind of provisioned for this. Correct. For the R&D domain as well. Moving on to crude now. Global crude oil prices fell today despite the news that OPEC Plus plans to end its supply increases. Brent crude was trading around 0.5% down at $64.44 per barrel, and the WTI crude was also trading nearly 0.6% down at $60.64 per barrel when reports last came in. Aman, with the kind of global geopolitical uncertainties that we are seeing, there are tailwinds somewhere, there are headwinds somewhere, and now with this OPEC Plus news which is trickling in, wherein it's kind of planning to increase the supply. So where do you see this oil prices kind of going on from here in the short term as well as in the long term? You see, I cannot talk about the long term because there are too many uncertainties which are there in the market. A lot of volatility is there. But in the short term, I would say these are expected to fall down. They may even come down to about $40-45 a barrel for two reasons. One is the increase which they have talked about. The second is that the US is in a shutdown stage. And one of the biggest reserves they have created in the last 50 years is that of oil. Not only their own production of oil, but the oil which they have actually taken from the large part of the world, specifically Iraq and others, where they captured and put sanctions. Iran also, they put sanctions. So they took a large amount of oil as against the food or medicine against oil policy and others. As a result, they have huge reservoirs, and given that they need money, they will as of now dump oil. So that is what OPEC is afraid of, that when they start dumping oil, countries will not buy oil from OPEC countries, but they will end up buying from US or Russia, which is already putting it at a lower rate. Yes. And that is why they are wanting to increase supply, and this will, both policies will push the oil, and it may even come down to $40-45 in a span of next 3 to 6 months. Right, and moving on to bullion now. In the Indian bullion market, the 24-karat gold price was trading over 0.2% up at 1,21,950 rupees per 10 grams, while silver was trading around 0.4% up at 1,49,390 rupees per kilogram. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना 0.3% बढ़कर 1,21,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, और दिसंबर अनुबंध वाली चांदी अंतिम रिपोर्ट आने तक लगभग 0.4% बढ़कर 1,48,823 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. और अमन जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so very much, Aman. And before we close, here is a reminder of the headlines once again. Benchmark domestic indices end with marginal gains. Sensex adds 40 points. Nifty settles above 25,750. Major Asian stock markets close in the positive territory, and global crude oil prices fall. And that's all in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye. Namaste.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.